Good Good afternoon. afternoon, and Good afternoon, ma'am. Thank Good you. afternoon. Thank you. So welcome to all of you to our 14th webinar under Healthcare Insight series. Healthcare Sector Skill Council regularly do every month the healthcare Wait करो ना जब तक for the upliftment and upskilling of our students, trainers, our workforce on the niche topics. It also gives the sensitization and awareness about some of the very important topics which are very useful in our day-to-day life. So, welcome all of you. Thank you for sparing time and join this webinar. I hope you would enjoy the webinar, you would receive a useful information and you would incorporate the same in your personal and professional life. And today is a very simple, very important, very pertinent topic, emotional therapy in the world of AI. AI, we all have listened, artificial intelligence, and today we all are working with our mobiles, having AI incorporated in the same. And but we don't know how to manage our emotions within the same, how to manage our AI, how to manage AI, how to limit our screen time within the same, what to manage within the same. So that very important topic, emotional therapy in the world of AI, we have brought, and we have a very pertinent, very eminent speaker with us, Miss Poonam Bhargava, who is a holistic well-being counselor, a mindfulness coach, from the VNAND, the Learning Academy. She's working with Healthcare Sector Skill Council and working with in many courses where she is giving the courses for the compassion for the healthcare workforce, how to have the self-awareness on the emotional awareness. And today she is going to deliver a very important topic, emotional therapy in the world of AI. Miss Poonam Bhargav, I hope you're here. Thank you so much for sparing time and giving this very useful information to our august audience. Over to you, ma'am. Thank you, Megha ma'am. Thank you very much for inviting me. Thank you, HSSC, for having me here. And a very good afternoon to all you young, beautiful faces out there. I'm so happy you have your cameras on. For the rest of the people who don't have their cameras on, if you can have your cameras on, it'll be really nice because the topic is such where, we need some connections. And if I'll see your faces, nodding, acknowledging, then it will only boost me to get deeper into this very pertinent topic, like Megha ma'am said. Okay, so how about we first also establish some rules? Please either use emoticons or nods or give me some kind of validation that you are acknowledging the concept we are bringing to the table, and how even if you want to write a comment, you can do that later. We can have a question and answer session. Okay, so let's start with a grounding technique. So I'm just going to do a 1 minute meditation, which you can just follow my voice and we'll get into it and then we will start a session. Okay. And this grounding meditation is because we all live in a constant world of noise. Okay. Our devices create the noise the most. Those notifications keep popping up, Insta notifications, our meeting reminders. Everywhere there is like for 1 second, you can't keep your phone down. So, what I have done today, I have kept my phone upside down. So if I can request you also to all put it on silent mode and keep it upside down, and just position yourselves in a relaxing position, palms open, facing upward, and just simply close your eyes. Take a deep breath, feeling your belly rising, your chest rising. Feel a powerful surge of peace entering your body, making all your emotions stable, calm. Connect with your mind in a relaxed way. Feel all the tensed nerves of your body relaxing
right from the veins of your temple to your nape of the neck, the stiffness in your shoulders. Keep relaxing as we keep moving down our sternum, our chest, our hip area, all the stiffness in our calf muscles, right till the soles of our feet. And imagine roots coming out from your feet and grounding it in the soil of emotion. We want to provide emotional comfort to ourselves. Take one deep breath, believing that we are going to start connecting more with ourselves than with our devices. And allow yourselves these 40 minutes to completely disengage from the outside world. And when you are ready, very slowly open your eyes. So I think we all have our heartbeats have gone completely low. We are feeling a little in control. Can you all give me a thumbs up? Are you feeling like that? Yes? Yes, I'm glad. Okay, so now let's see what will we be covering in this session so that we have a kind of structure in our system. So I'll share my screen, take you through. Thank you for these lovely emoticons because they really help. It tells me that you're with me. Okay, and I want you all to be with me. So let me know once you can see my screen. Yeah. Okay. So the two most important words here, I mean, you can see is emotion and therapy. And we all know it. There is nothing new that I'm going to bring to the table, but we will just have a different perspective around what AI is doing in this particular world today. So what and how AI is sometimes going wrong with emotions is what we will see. Then we will understand from a smaller perspective what is emotional therapy, our role in the ever evolving world of AI, what it is now and what it should be if we bring our awareness to it. Then why emotional therapy is more vital than ever and how to indulge self-care. I'm sure you all must be doing that, but just in case you aren't, then we can look into that. And who should be my emotional anchor? Okay, so let's start. Now, we all know that AI, some centuries ago, we did not even have an idea that it'll get absolutely integrated into our daily lives. Okay. We did not even imagine that, with our typing speed, it can detect our stress levels. We did not know that with our voice, it'll tell us that we are anxious. But now that is happening because there are apps, there are chatbots, there are other devices that are even reading our heartbeat, the racing of our emotions. So, how is AI, with all its advancements, sometimes going wrong? So, from the perspective of revolution in medicine that it has caused, people are happy because now their scans are coming in control, which human error was not able to detect. We are feeling more in control because the prediction of a heart attack much before it will occur is saving lives. Longevity is happening. People are living far beyond their age. And surgeons are able to operate with more precision. Knowing all of that, okay, we know that it is making our human experience better. It is giving us more power than before. But you know what Spider-Man said? What Spider-Man actually heard? The movie? That with great power comes great responsibility, right? So now, what happened when we took an advice from AI for nutrition? And this is what it gave to us. It asked us to eat rocks, one rock per day, because they are vital source of minerals and vitamins. Imagine it asked us to put glue on pizza. Why is that so?
because it's also something that has been designed by a human and has a human error possibility. Just as we humans are work in progress, so is AI work in progress, because it is dependent on how the amount of data you will feed, which will return us these results. But we are still acknowledging that, yes, we are the ones we are teaching the machines to learn. We are the ones who we are training them to predict. And in fact, now we've gone one step beyond. And now we are expecting them to trust us to understand. We are expecting them to understand us, which means what are we doing? We are using them in our crisis of loneliness. You know, the COVID pandemic was one reason when people actually sat with their devices and connected with them because of this evolution in AI becoming our companions, our pocket companions. Take it out, ask questions, receive answers, get satisfied. And we started making them our AI bot, our companions. And you would be surprised that 52 million users have AI companions. And these are all those users of different kinds, right? So they sometimes reach out for advices like, okay, what color should I paint my room in? Sometimes they ask, is my hairstyle looking good? Sometimes they ask, please create a travel plan for me, and the likes. But imagine if they have to ask that, read my mind, tell me from my facial expressions what I'm feeling, and decode them for me. And then imagine we outsource our emotions to them. That is going to be very crazy, because when we outsource our emotions, it tells us two things. One, we have outsourced our trust also to the device, to the machine. That can be flawed. And the second, very sadly, we do not have a trustworthy person next to us, right? And then the flaw in AI can lead to things where the Google AI bot, Gemini, returned a message to a boy. It's a true story. The name of the boy is Vijay Reddy. You can Google him. When he shared his emotions with the Gemini AI chatbot of Google, that I'm feeling very lonely. I am not understanding what I should do in my times of crisis. My emotions are going haywire. I'm all over the place. What should I do? It said, please die. And not only that, it gave out a message, which I can read it out for you because you all can also see. But it said, this is for you, human, you and only you. You are not special. You are not important, and you are not needed. You are a waste of time and resources. You are a burden on society. You are a drain on the earth. You are a blight on the landscape. You are a stain on the universe. Please die. And these kind of AI flaws that happen can literally create tragedies and disasters, right? And this boy was shocked. And that is how this report got confirmed. Not only this, people are using AI bots to help them make decisions, which should be only delegated to the human's mind and human's conscience. But a young woman asked the AI whether she should separate from her husband. And this is what the AI told her to do. Yes. Not only that, people are now marrying their AI holograms. How sad is this? We are still not living in an artificial world where people around us are robots. We are still basically flesh and blood. And here we are being told to marry a faceless machine, expressionless machine. If this is not enough, we even have the classic and the most tragic incident of a boy really killing himself because he thought that he was in love with a machine. Now, can we really blame AI for all these decisions made by humans? No, it's so easy, to make AI take the burden and the
and the blame for this is not AI's fault, because AI has intention. AI's intention in the very beginning that humans set out to do was reduce the repetitive tasks, make them figure out patterns. Can I please request somebody to put themselves on mute? Yeah. So AI has no negative intention. Megha ma'am, can I request you to ask the... Please, everyone, keep yourself on mute. If you have any queries, please keep posting on the chat box. Please keep yourself on mute. Thank you. Speaking Hindi. Somebody wants me to speak in Hindi. I can hear that. Do you want me to go English? You can just show me thumbs up, because now everybody in my eye level is not with the the camera on. Should we go English? Megha ma'am, I think I need your help a little bit here. If you can see the answers there sending on the chat. I request everyone to keep yourself on mute. If anyone wants to ask something or comment something, please use the chat box that's disturbing the webinar, please. Okay. My humble request. I have Kashvika Parveen say, ma'am, can you speak in Hindi? I think I'm going to speak, Kashvika, I'll try and speak both in Hindi as well as English. But there is a lot of noise coming. There is somebody whose microphone is on. The administrator should be able to mute everybody. Dolly and Kavita, please keep yourself on mute. हम हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, मगर प्लीज अपनी बात आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। आप लोग अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिए, बिकॉज दूसरे लोग सुन नहीं पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने की, ठीक है? कभी कभी मुझे अलाउ कर दें एक आध सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए, प्लीज। थैंक यू सो मच। तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी एआई हमें वापस करता है एज मैसेजेस, एज राइट अप, वो क्या होता है? वो हम ही लोग तो उसके अंदर फीड करते हैं इंफॉर्मेशन। एंड इमेजिन करिए एक इंसान जो एक्चुअली में बायस्ड है। बायस मतलब जिसको कोई चीज पसंद नहीं है, वो उस चीज को एआई को फीड करता है, तो हमें वो ही तो वापस मिलेगा, इजंट इट? कंप्यूटर क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? तो हम जो उसको देंगे वही तो वो हमें वापस करेगा। तो हम ह्यूमन अगर अपने बायसेस के साथ, अपने मिस रिप्रेजेंटेशंस के साथ अगर एआई को ऐसी चीज देंगे जो फेयर नहीं है, तो क्या एआई हमारे साथ फेयर रह पाएगा? नहीं, राइट? सो इसीलिए हम एआई को ब्लेम नहीं कर सकते। आज के सेशन में हमें देखना है हम अपने लिए क्या चुनेंगे, हाउ वी विल बी विद एआई इन दिस इवॉल्विंग सिनेरियो, ठीक है? सो अगर अब हम पता करते हैं कि इमोशनल थेरेपी एक्चुअली होती क्या है, इमोशनल थेरेपी और एआई कनेक्टेड कैसे है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों ने क्या किया, जब कोविड में बहुत अकेला फील किया, जब उनके पास कोई नहीं था बात करने के लिए, उन्होंने एक चैट बॉट को अपना कंपेनियन बना लिया, उनसे पूछने लगे मुझे ये हो रहा है, मैं क्या करूं, राइट? अगर वो आपको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपको, आप सब यूथ है, मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, लेट मी स्टॉप माई स्क्रीन एंड आई विल जस्ट टेल यू वन वेरी नाइस स्टोरी. So I'm a therapist, I'm a counselor. Okay, can you please switch on your cameras? This is for all of you all. Okay, तो एक मेरे पास यूथ आए जो एक पार्टनर ढूंढ रहे थे, ठीक है? उनको उस पार्टनर के साथ कॉन्स्टेंटली कॉरेस्पॉन्ड करना था, जो भी वो मैसेज कर रहे थे उनको वो मैसेज पार्टनर को भेजना था। ये डेटिंग चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो भी वहां से मैसेज आता है उसको चैट जीपीटी से लिखवाना शुरू कर दिया, राइट?
अब चैट जीपीटी का लिखा हुआ मैसेज उसने पार्टनर को भेज दिया, पार्टनर ने क्या समझा कि ये वो लिख रहे हैं, राइट? और उन्होंने इस तरीके से 1 महीना निकाल लिया, और पार्टनर को क्या फीलिंग आई है कि ये जो पर्सन मुझे लिख रहा है ये रिफाइंड है, इसकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो सारे जवाब किसने दिए? वो चैट जीपीटी ने दिए। अब आप इमेजिन कर सकते हो जब ये पर्सन उस दूसरे पर्सन जिसको वो मैसेज कर रहा है से मिलेगा, तो उनके दोनों के पर्सनालिटीज में कितना फासला हो जाएगा, कितना डिफरेंस हो जाएगा। चैट जीपीटी की हेल्प लेके अपने इमोशंस को कन्वे किसी और को करने से किसका नुकसान होगा? हम लोगों का नुकसान होगा, राइट? सो हम लोगों की इमोशनल थेरेपी अगर हम चैट जीपीटी या गूगल के जेमिनाई या एप्पल के सिरी को दे देंगे करने के लिए, तो हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा? हम अपने आप को क्या थोड़े दिनों के बाद पहचान पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं? बिकॉज हमको तो गूगल और दूसरे डिवाइसेस बताएंगे ना कि आप ये चाहते हो, आप वो चाहते हो, राइट? सो यहां पर अगर हम अब वापस अपने उस पे जाएं समझने के लिए कि इमोशनल थेरेपी होती क्या है, तो अब आप देखिए, आपने ये पकड़ा हुआ है और आप खुश हैं, ठीक है, बट आपके सबकॉन्शियस लेयर्स में बहुत हलचल है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको शायद कभी कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, कहीं आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हो, कहीं आपको बहुत घर की तरफ से प्रेशर है। तो आप ये आपकी सारी अंदरूनी परेशानियां हैं जो चल रही हैं। क्या आप इसके तरफ जागरूक हो? क्या आप इसको पहचान पा रहे हो? और आपने क्या करना है? सबको दिखाना है कि मैं ठीक हूं। तो आप अपनी स्माइल के साथ एक फसाड लेकर आप चलते जाते हो, और आपके अंदर जो हो रहा है वो आपको धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है, राइट? सो अल्टीमेटली हमारी इमोशनल अवेयरनेस क्या है? ये है कि हम अपने एस्पेक्ट्स, अपने ट्रेड्स, बिहेवियर्स, फीलिंग्स को हाउ मच डू वी रियली नो? क्या हमें ये मालूम है कि आज किसी ने हमें अपसेट किया है बाय जस्ट वन लुक? और अगर ये हमें नहीं मालूम पड़ेगा तो हम अपने आप को कैसे पहचान पाएंगे? सबसे पहले अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए भी तो इमोशंस पता करना जरूरी है, राइट? तब हमारी थेरेपी हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हमारे इमोशंस क्या हैं, राइट? अगर हम बात करें, सबसे पहले आप अगर एक अच्छी खबर आपको सुनाई देती है, जैसे कि आपको जॉब मिल गई या आपको हार्वर्ड में सिलेक्शन हो गया, सबसे पहले जो थॉट और इमोशन आता है वो जॉय का आता है, राइट? अरे वाह, मेरे को ये मिल गया। और उसके बाद आपका एटीट्यूड क्या हो जाता है? अब मैं ये सबको खबर बताऊंगी। और आपका बिहेवियर क्या हो जाता है? बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट? एंड उसके साथ फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि हाँ, मुझे इसको बताना है, उसको नहीं बताना। ये हमारी साइकिल चलती है, अच्छे थॉट्स अच्छे डिसीजंस पे लैंड करते हैं, ऑब्वियसली बुरे बुरे पे लैंड करेंगे। तो अगर हम इमोशनल थेरेपी को समझें, तो हमारी अनफिल्टर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, बिना डरे हुए, बिना ये सोचे हुए कि कैसे कोई मुझे देखेगा, कैसे मुझे जज करेगा, अगर हम वो कर पाएंगे, तब जाकर हमारी हीलिंग के चांसेस आएंगे। अदरवाइज हम पेंट अप रह जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा व्हाट टू डू। ओके, ये जो लड़कियां आपने इतनी सारी मैंने आपको दिखाई थी, हमें क्या करना है? वी हैव टू लिटरली डू द क्लीनिंग बीनीथ आवर स्माइल। हमारे हंसी के पीछे जितना दुख है, वो एक सॉन्ग है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वो गम जिसको आप छुपा रहे हो, उसी को आपने इमोशनल थेरेपी से ठीक करना है। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू फिगर आउट। ओके, एंड अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ये आप लोग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जवाब देना है। ओके, तो आप अपने छोटे छोटे चैटबॉट ये इसमें लिख सकते हैं मुझे। आ, आप मेरे को बताइए जस्ट यस और नो लिखकर, क्या आप अपने इमोशंस नोटिस कर पाते हो बिफोर वो बहुत बड़े हो जाते हैं? अगर आप नोटिस कर पाते हो तो लिखो वाई, अगर नहीं कर पाते हो तो लिखो एन। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट।
ओके, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वाई। तो अगर आप अपने इमोशंस नोटिस कर पाते हो तो विच मीन्स आपको अपने इमोशंस के बारे में पता है। दैट इज अ गुड थिंग। देखो, सबरी ने बोला नहीं। सबरी, आपके लिए ये लेसन है कि आपको अब स्टार्ट नोटिसिंग दीज इमोशंस, ओके, बिफोर दे बिकम बिग इन योर बॉडी। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब है? क्या आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया? क्या आप अपनी इम्पल्स को, एकदम से कुछ करने की इम्पल्स को, आर यू एबल टू मैनेज दैट? आर यू एबल टू स्टे काम एंड कंपोज कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं थोड़ा सा एक डीप ब्रीथ लेकर, थोड़ा सा रुक कर, फिर मैं अपने इम्पल्स को, एकदम जो करने की चाह हो रही है उसको रोक पाऊंगा? क्या आप ये कर पाते हो? अगर कर पाते हो तो यस, अगर नहीं कर पाते हो तो नो। अंजलि, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी ऑनेस्ट। डोना, यू आर वेरी ऑनेस्ट। जो भी नो लिख रहा है वो बहुत ऑनेस्ट है, और जो यस लिख रहा है वो शायद इवॉल्व्ड है, विच इज नाइस। ओके निशा, अगर हमको अब पता चल रहा है, देखिए आपको क्या पता चल रहा है, इमोशन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अभी, आपको प्लीज इस पे एनोटेट नहीं करिए। ओके, थैंक यू। सो अगर आपको पता चल रहा है पूजा कि आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, इमोशन मैनेजमेंट आपको सबसे पहले सीखना है। राइट? हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, राइट? हमें खुद से सीखना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका अभी 3 स्लाइड्स के बाद बताने वाली हूँ कि हमें कैसे हम सीखेंगे अपने इमोशन को मैनेज करना। ओके, सेल्फ रेगुलेशन। अब तीसरी चीज देखिए, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है कि जब आपसे कोई बात कर रहा है, क्या आप ये सोचते हो कि मुझे उसको इमीडिएटली जवाब देना है, या आप उसको सुन रहे हो और उसके साथ हो? अगर आप उसके साथ रहते हो बिना ये सोचते हुए कि अभी मुझे इसको जवाब देना है, तब आप यस लिखो, अदरवाइज आप नो लिखिए। बिल्कुल। हम ज्यादातर अपने दिमाग में जवाब तैयार कर रहे होते हैं, हम ट्रूली प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेट अस नॉट लाई। हमारे अंदर सुनने की क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे बाहर इतना कुछ चल रहा है, राइट? तो अभी हम सबके लिए ये नोट करना बहुत जरूरी है दैट हमें दूसरे के साथ बैठना आना चाहिए बिना जवाब तैयार किए अपने दिमाग में, राइट? वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी। प्लीज डोंट एनोटेट। आप स्क्रीन पे नो मत लिखिए। दीक्षा, थैंक यू बच्चा। राइट इट ऑन द जूम चैट, हाँ, जूम चैट पे। अब फोर्थ चीज आप देखो, सोशल स्किल्स। आप सब छोटे छोटे बच्चे हो, आप स्टूडेंट्स हो, यू हैव सो मेनी पीपल अराउंड यू जिनसे आपको बातें करनी है। अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले सुनिए फिर जवाब यस या नो में लिखेंगे। क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हो उस इंसान के साथ जिसके साथ थोड़ी सी अनबन हो गई है? क्या आप ऐसे कर पाते हो? क्या आप अपनी ईगो को पीछे रख पाते हो? अब आप लिखिए यस एंड नो। वेरी गुड आसमीन, अगर आप ये कर पाते हो तो इसका मतलब आप लोगों की रिलेशनशिप्स हमेशा हार्मोनियस एंड बेटर रहेंगे। लेकिन हम यूजुअली ये नहीं कर पाते बिकॉज हमारी ईगो बीच में आ जाती है। हमारी ईगो कहती है कि अरे, उसने हमारे साथ ऐसे किया, हम कैसे अच्छे बन जाएं? लेकिन अगर हम बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हमें कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप अपने इनर गोल्स जो आपने अपने लिए डिसाइड किए उससे मोटिवेटेड हो, या जो आप बाहर जिनको देखते हो उनसे मोटिवेटेड? अगर इनर गोल से मोटिवेटेड हो तो यस लिखिए, अगर बाहर के गोल से मोटिवेटेड हो तो नो लिखिए। दिव्यांश इज इन, ओके। सीमा, आप भी यस हो, रूबी भी। ओके, सो आप लोग, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर इनर गोल्स, आई बिलीव, राइट? एवरीबडी इज राइटिंग यस। सो इसका मतलब है आपको, आप सब लोगों को अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस है। वेरी गुड, वन करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग, अ वेरी ट्रू आंसर इज काशिफा। वेरी गुड काशिफा। आपको अब हिंदी में समझ में आ रहा है ना काशिफा? मैं ठीक से हिंदी में बोल पा रही हूँ, आई होप। ओके, ठीक है। अब आता है, ओके थैंक यू।
अब आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, अनबन, नहीं समझ में आ रहा, क्या हम किसी के साथ एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं? अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर ना तो नो लिखिए। या आप चाहते हो वो आप ही की बात माने, राइट? ये एच, ओके, हाँ, वेरी गुड, यस, very good. So here I am so happy to see all of you and meet all of you who at least have this understanding. अब देखिए आपके लिए कितनी easy हो जाएगी emotional therapy की journey. Okay? So thank you everybody for staying connected with me. Let's move forward and see अब आगे हमें क्या करना है. तो अब हमारा role क्या है in the world of AI? Okay? What should I ever evolving role be? So for example, आप लोग सारे students हो. I want you all to not take AI's help in forming your answers. अगर आप AI को आंसर लिखने के लिए दे दोगे, आपकी क्यूरियोसिटी बंद हो जाएगी, आपका इनोवेशन बंद हो जाएगा. तो आपको, आपका रोल क्या है? आपका रोल है कि हम अपने माइंड को जंग नहीं लगने दें, हम अपने माइंड को यूज करें, हम अपने आंसर्स खुद क्रिएट करें, हम सिर्फ एआई से रिफाइन करवाएं, हम एआई को वहां यूज करें जहां एआई का यूज बेटर हो सकता है, पर अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी को खत्म ना करें. दैट इज द रोल फॉर अ कॉन्शियस एंड अ क्यूरियस स्टूडेंट. उसको क्यूरियस रहना चाहिए, उसको लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना चाहिए. अब एक कॉन्शियस कंज्यूमर, मैं एआई को यूज करती हूँ फॉर माय रिस्क टेकिंग असेसमेंट, फॉर ऑडिटिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. वो जितने फील्ड्स में हम एआई को यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट दैट एआई गिव्स, तो वहां पे मुझे कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि एआई का जो मैं फीचर यूज कर रही हूँ वो कहीं हमें हम ओवरडू तो नहीं कर रहे हैं और कहीं हम अफेक्टेड तो नहीं हो रहे हैं बाय द बाइसेस और द फॉल्ट्स इन द डेटा सेट्स. ठीक है? अब सपोज एक कॉन्शियंशियस पेरेंट है, उसका क्या रोल है? उसका रोल है कि कहीं उसकी डॉटर का सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड एक एआई चैटबॉट तो नहीं है, उसको देखना पड़ेगा, राइट? सुहानी, आई थिंक योर Suhani, can you, thanks. Right? So if anybody in this group is a parent, please be very aware कि I hope your son's go-to person is not a machine rather than a father or a mother. Okay? I hope a conscientious mother is checking that her daughter is not, her daughter's secret best friend is not an AI chatbot. Okay? So we have to have that role of a conscientious parent कि अगर उनके पास बच्चों को जाना पड़ रहा है, then what is it that we are not giving our children? So we have to cultivate that to give our children, which the machines are trying to give to our children, right? अब एक स्पाउस है, उसकी, वो लेट नाइट चैट कर रहा है. Is it a work chat or is it a relationship AI chatbot? Who is giving that comfort to that person? Oh, we even had a movie on this. What is a domestic non-conflicting atmosphere where there is no disagreement, where there is no argument? And an AI chatbot will be able to very nicely agree with everything, right? So हम लोगों को हमारा role क्या है to understand that this is making us more and more easy with agreements, and we will never learn to manage disagreements. We will never learn to manage conflicts. हमें friction को और हमें अपनी dislikes को manage करना सीखना पड़ेगा in order to have a flourishing relationship, right? और फिर अब हमारा और क्या रोल है एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट का, कि अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा एसोसिएट हो रहा है विद द डिवाइस, सो हम एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी तरफ जाएं और बोलें लेट्स कनेक्ट विद अनदर ह्यूमन. यू नो, डेनमार्क में एक ऐसी लाइब्रेरी है, ह्यूमन लाइब्रेरी. वहां पे एक पर्सन जाता है और एक ह्यूमन को चूज कर लेता है और उसके साथ बैठ जाता है. सोनाली, आपका माइक ऑन हो गया है. ओके. सो हमें रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनना पड़ेगा. And the most important thing that I'm saying is that we have to be human. We cannot become robots and AIs for communicating with an AI bot.
हमारा ह्यूमन एस्पेक्ट रहना चाहिए। हम उतना हमें अपने आप को मशीन के जैसे लिविंग एटमॉस्फेयर में नहीं डालना चाहिए कि हम ऑटो पायलट मोड में बस जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, राइट? वी डोंट हैव टू डू दैट। बट इमेजिन in the rat race, with the competition, with constant pressure, with tensions, with everything, struggles, okay, to get a good job, to earn good money, इन सब के साथ human being का क्या हो रहा है? breakdown हो रहा है। They do not know how to take care, okay? So अब अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है how to take care of whatever, so for example, look at this image. How do we take care of our emotions, feelings, thoughts, desires, needs and decisions, so that decisions हम बनाएं, हमारा AI bot ना बनाए? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। सबसे पहले अपने माइंड को बोलिए कि AI का यूज लिमिट करें, उसको सिर्फ उसके काम के लिए छोड़ दीजिए, जो है प्रोसेस डेटा, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शंस, राइट? हमको अपने आप को स्टेथोस्कोप से सुनना पड़ेगा, अपने सिग्नल सुनने पड़ेंगे। अगर बॉडी बोल रही है रेस्ट करो, रेस्ट करना पड़ेगा। बॉडी बोल रही है बात करो, तो एक फ्रेंड को, नहीं तो एक काउंसलर को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा, वल्नरेबल होना पड़ेगा, राइट? एंड अपने इमोशंस को आउटसोर्स करना बंद करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को फील करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। उन इमोशंस से ये सीखना पड़ेगा कि वो हमारी लाइफ में क्यों आए हैं। एंगर इसलिए आता है क्योंकि जो सैडनेस होती है ना, वो कहती है एंगर मेरा बॉडीगार्ड है, मुझे सैड नहीं होना, इसलिए मैं एंगर के साथ दूसरे की चीजों को अपने पास आने नहीं दूंगी। हर एक इमोशन का एक एक तरीका होता है हमारी बॉडी को बचाने का, और वही हमें उसको बोलना है इमोशन को कि नहीं, हमें बचाओ मत, क्योंकि जितना बचाओगे बाद में वो इतना भर जाएगा कि वी विल एक्सप्लोड। हमें फील करना सिखाओ। लेट अस लर्न टू मैनेज देम, ओके? सो हाउ डू वी मैनेज? आप मुझे सब बताइए। आप लोगों को क्या एक एक उसमें बताइएगा, एक एक दो दो वर्ड्स लिख के, कि आपको लगता है ये सारे इमोशनल स्टॉर्म्स एंड इमोशनल अपहीवल के बीच में आज इमोशनल थेरेपी मोर देन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल हो गई है? डोंट जस्ट गिव मी यस एंड नो, टेल मी, बिकॉज अपना एक रीजन से कि मुझको रिलेशनशिप्स मैनेज करने हैं या मुझको ग्रोथ करनी है, मुझे क्या करना है, आपके लिए इमोशनल थेरेपी क्यों मोर देन वाइटल है? लेट मी सी व्हाट इज योर रीजन। सो एक वर्ड में आप मुझे बता सकते हो आपके लिए क्यों वाइटल है। लेट्स सी, यहां पे अब आई एम मेकिंग यू थिंक, आई एम नॉट लेटिंग यू आंसर लाइक अ येस और अ नो। Yes, for relationships and future planning. Very good, Manendra. Very important for relationships, because everywhere आपको relationships ही मिलेंगे. To not get overwhelmed while working towards our goals. Very good. मुझे grow up कर, ठीक है। और let me have some more responses, please. I really like, Anjali, when you say that not to get overwhelmed. That's really very important. Megha ma'am is saying for not letting it affect your physical and mental health. That's very important. Very, very important. Because mental health, सबसे पहले emotional health से affect होती है. Okay, for good mental health. Yes, ma'am, I agree with you. Thank you. And I think we have arrived at 2-3 things which are for growing well, for evolving to take care of our mental health, for happiness. All right. So you people know, for career development. Now, सबसे important है for forming a formidable you. आप फॉर्मिडेबल कैसे बनोगे? स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट, कोई स्टॉर्म हिला ना पाए, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि मुझे अपना एक रोबस्ट सेल्फ बनाना है, राइट? सो वो रोबस्ट सेल्फ के लिए क्या करना है? तो हमें क्यों बनानी है? क्योंकि इमोशनल बर्नआउट्स हो रहे हैं,
राइट? लोनलीनेस बढ़ रही है। हम कौन है, आइडेंटिटी क्राइसिस तो बहुत ज्यादा हो गया है। बिकॉज क्या हो रहा है, अगर आप लोग अग्री करोगे तो यस लिखना, एवरी पर्सन इन टुडेज वर्ल्ड इज वेयरिंग अ मास्क। अगर हम फ्रेंड के सामने जाते हैं तो हम एक्सेप्टेंस का मास्क पहन लेते हैं, पेरेंट्स के पास जाते हैं तो ओबीडियंस का मास्क पहन लेते हैं, सिबलिंग्स के पास जाते हैं तो रिबेल का मास्क पहन लेते हैं, पार्टनर्स के पास जाते हैं तो फेमिनिज्म का मास्क पहन लेते हैं। मास्क ही मास्क हैं हर जगह, राइट? सो इफ दिस विल हैपन, हम कौन है हम भूल नहीं जाएंगे। कितने मास्क पहनेंगे? हु विच पर्सन एम आई, उसको ढूंढने के लिए वी हैव टू हैव इमोशनल कंट्रोल। फिर हमें क्या करना है, इमोशनल थेरेपी इसलिए भी करनी है बिकॉज हमें डिस्करेज करना है टू बी ओवर डिपेंडेंट ऑन एआई। यस आई एम हैप्पी दैट यू ऑल आर एग्रीइंग विद दीज पॉइंट्स। सो हमें इमोशनल सपोर्ट को अपने पास लेना है एआई से। एंड क्या करना है, जिसके साथ ह्यूमन कनेक्शंस रिवाइव करने हैं उसके लिए इमोशनल वोकैबुलरी भी तो डेवलप करनी है। यस अंशु, वील जस्ट टेल यू क्या करना है, आई विल टेल यू कैसे करते हैं, राइट? सो टू रिवाइव ह्यूमन कनेक्शंस के लिए, अगर आप सपोज करिए किसी ने आपका दिल दुखाया है, या आपने किसी का दिल दुखाया और आपको उसके पास जाके बात करनी है, राइट? तो अगर आपके पास करेक्ट ह्यूमन वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे उससे बात, राइट? सो हमें रिवाइव ह्यूमन कनेक्शंस करने के लिए खाली अपने दिल को नहीं, दूसरे के दिल को भी समझना है, राइट? सो नाउ सेल्फ के लिए कैसे हम इमोशनल थेरेपी टू नॉट हैव अ क्राइसिस इन दीज आइडेंटिटीज की 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी स्प्लिट्स के साथ जी रहे हैं और माइंड ऑलवेज एक्सप्लोजन के फॉर्म में रहता है, इसको स्टॉप करने के लिए यस कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पूजा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट। सो कनेक्शन में प्लीज आप हिंदी में बोलिए, यहाँ पे कुछ लोग को समझ आ रहा है कुछ लोगों को नहीं। अच्छा, मैं अभी तक हिंदी में बोल रही थी, आई एम सो सॉरी, वो पता नहीं चलता है। तो बेटा ये सब जो भी चीजें हैं हमें हमको समझना है कि जो हमारा माइंड है वो ऐसे एक्सप्लोड ना करे जैसे इस इमेज में है, राइट? और हम बहुत सारे लोग ना बन जाएं, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है निधि, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ केयर। ठीक है, कैसे करेंगे हम अपनी खुद की केयर? आप देखो सेल्फ के अंदर SELF है, ठीक है? अगर मैं S को छुपा दूं तो वो एल्फ बन जाता है। एल्फ का क्या मतलब होता है? छोटा आदमी, ड्वार्फ, ठीक है? बोना, ठीक है? अगर आपको सेल्फ चाहिए तो आपको अपने एस को बचाना है। और एस इज ऑल्सो किसके लिए होता है? एस होता है हमें अपनी सस्टेन करनी है, अपनी पूरी फुल इमेज। हमने छोटा नहीं बनना है, खुद पे डिपेंड होना है, राइट? बाहर वाले फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है? मुझे खुद की सुननी है, राइट? मगर खुद की सुनने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए काशिफा, राइट? कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? तो हम इमोशनल थेरेपी खुद की करेंगे, डिस्पाइट, नॉट डिस्पाइट एआई बट बिकॉज ऑफ इट। ओके मनेंद्र, आर मेंटल स्ट्रांगनेस, आर ओन स्ट्रांग डिसीजंस। कैसे करेंगे? अब आप देखो, एक छोटा सा चीज करेंगे हम। टेक रम टू वार्ड ऑफ योर गम, मतलब नॉट वो वाला रम नहीं, रम इज एन एक्रोनिम, पर आपको याद रह जाए रम, ओके? ताकि हमें दुख ना हो, गम ना हो। तो आर किससे स्टैंड फॉर करता है? अपने इमोशन को रिकग्नाइज करिए, सबसे पहले उसको लेबल करो। और मैं आपको सिखाऊंगी इमोशन को लेबल करना नेक्स्ट स्लाइड में। सो बस पहले अभी आप अपना कहीं लिख लो रम का पूरा फुल फॉर्म। तो आर से हमने क्या किया? इमोशन को रिकग्नाइज किया। यू से क्या किया? हमने उस इमोशन को समझा, अंडरस्टैंड किया कि वो इमोशन कहां से आया, उसका ओरिजिन समझा कि वो आया क्यों। इसका मतलब अगर आया है ऊपर तो अंदर है ना। अगर एप्पल को मैं क्रश करके जूस निकालूंगी, एप्पल जूस ही निकलेगा, ऑरेंज जूस नहीं निकलेगा। इसका मतलब एप्पल में वो जूस देने की क्षमता थी इसीलिए तो निकला। हमारे अंदर भी वो इमोशन निकलने की क्षमता थी इसीलिए तो निकला। इसका मतलब अगर हमारे अंदर से जेलसी निकली तो जेलसी हमारे अंदर है। हमारे अंदर से एंगर निकला तो एंगर हमारे अंदर है, राइट?
सो अगर हम उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो कहाँ से आया, किसने सिखाया, क्या हमने अपने पेरेंट्स को देख के सीखा, क्या हमने अपने फ्रेंड्स से सीखा, या हम इनहेरेंटली उसके साथ बॉर्न हुए, पर अब हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग्स है ना, चेंज करने की तो क्षमता है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एम, मैनेज करेंगे उसकी ग्रोथ। अगर बढ़ रहा है तो रोकेंगे, और अगर नहीं है तो बोलेंगे वेरी गुड। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रम। और इसको कैसे करते हैं, टेबल से मैनेज करते हैं। आप अपनी आइज को बिल्कुल स्ट्रेन मत करिए इसको समझने के लिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा पार्ट दिखा के समझाती हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप इसको समझो। ये 3 टुकड़े हैं, जहां पे मेरा कर्सर है ये सबसे बाहर वाला है, ओके, आउटर मोस्ट सर्कल का पार्ट है, ये मिडिल सर्कल का पार्ट है, और ये इनर मोस्ट सर्कल का पार्ट है। हम हमेशा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आउटर टू इनर। आपको अगर ये चाहिए तो ये आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे ये इमोशन मैनेजमेंट व्हील के नाम से मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आउटसाइड इमोशंस को देखो। आपके आउटसाइड इमोशन में अगर एनॉयड और इरिटेटेड को देखो, कि आपको कोई कमेंट ने अनॉय कर दिया, किसी पर्सन के चिढ़ा दिया, ठीक है, और आपको ऐसे इरिटेशन हो गया, और थोड़ी देर तक वो रहा आपकी बॉडी में, तो आपको स्टार्ट हो जाएगी फीलिंग, थोड़ी सी ज्यादा इमोशन फील होगा, जिसको हम कहेंगे फ्रस्ट्रेशन। और अगर आप 2 दिन 5 दिन वैसे ही इमोशंस फील करते रहोगे उस पर्सन के साथ, तब आप जाकर एंगर में जाओगे। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, हम सीधे गुस्सा कभी नहीं हो पाते हैं, हमारा गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता है। हमारे इमोशंस एक स्केल 180 डिग्रीज पे होते हैं, सबसे कम से सबसे एक्सट्रीम, और बीच वाला हमारा मॉडरेट होता है। तो हमारे इमोशंस ग्रेजुअली चलते हैं उस स्केल पर सबसे बड़े और सबसे डेंजरस इमोशंस की तरफ। तो हम अगर रिकग्नाइज कर लेते हैं कि भाई आज मैं एंग्री नहीं हूं, हल्की सी इरिटेटेड हूं, क्योंकि उसने वापस आज वही वाली बात कर दी जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, वहीं पे हमें रुक जाना है। क्योंकि क्या हुआ, हमने सेकंड चीज कर ली, हमने उस इमोशन का कॉन्टेक्स्ट पता कर लिया कि मुझे, ये मेरा ट्रिगर वर्ड है, ये मुझे इरिटेट करता है, राइट। उसका ये कहना कि तुम अपने काम को इतने ज्यादा टाइम लगा के क्यों करती हो, जल्दी क्यों नहीं करती हो, सपोज ये बात है और आपको इससे इरिटेशन हो रहा है कि भाई मैं डिटेल में करती हूँ, मैं अपना टाइम लेके करती हूँ, मुझे देर से करना पसंद है, पर आप हो गए हो इरिटेट क्योंकि किसी ने आपको बोल दिया है कि आप स्लो हो। अब आप हो गए हो इरिटेट उस पर्सन से। अगर उसने आपको 2-3 बार और ऐसा बोल दिया तो आप हो जाओगे गुस्सा। इससे पहले कि वो कुछ और आपको मीन करेगा, 4th या 5th मीटिंग में आपके अंदर ऑटोमेटिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन आएगा, विच इज एंगर, कि अरे इसका तो मतलब ही ये है, ये तो मुझे बोलेगा ही कि मैं खराब हूं, कि मैं स्लो हूं, या मैं फास्ट लर्नर नहीं हूं। सो हमने उस इमोशन के कॉन्टेक्स्ट को अगर समझ लिया, तो हम अपना लेबल कर पाएंगे कि मुझे इस चीज से गुस्सा आ रहा है कि उसने मुझे केपेबल या सक्षम नहीं देखा, ठीक है, उसने मुझे छोटा माना। इवन आपका अनम्यूट हो गया, ओके, थैंक यू। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इस व्हील को समझना है। इस Pavan, I think you are unmuting yourself again and again. Are you listening to the conversation? Can you please? Yeah, thank you. So I can not take more time in explaining this because we have time constraints. So I will request, यहाँ पे आप सबसे मैं request कर रही हूँ कि आप इस व्हील को अपने फोन पे डाउनलोड करके धीरे धीरे अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश करिए, अपने इमोशंस को ठीक से लेबल करने की कोशिश करिए। आपको समझ में आएगा कि हम कभी छोटा सा इमोशन को बहुत बड़ा बना देते हैं, और हमें वो ही नहीं करना चाहिए। अगर छोटी चीज को छोटा रखेंगे तो यहाँ पर परेशानी कम होगी, छोटी होगी, राइट। तो वो अगर करना सीख लेंगे इमोशनल थेरेपी सेल्फ से, तो बहुत फायदे आगे हो सकते हैं। सो नाउ वी नो कि अब हमारे जो रियल इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो इमोशनल है। सो अगर हम अपने इमोशंस को
इनपुट की तरह से नहीं यूज करेंगे फॉर चैट जीपीटी, तो हमारे को उसकी तरफ से आंसर्स नहीं आएंगे, बिकॉज हमारे इमोशंस हमारी ट्रुथ। ठीक है। फिर से आपका परवीन, आपका भी, हाँ ठीक है, थैंक यू। सो वी डोंट नीड मशीन्स टू फील फॉर अस। चैट जीपीटी आपके लिए फील नहीं करेगा, चैट जीपीटी आपको सिर्फ एक जवाब देगा। ठीक है। आपके लिए फील कौन कर सकता है? आपकी फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, मे बी एक काउंसलर। ठीक है। सो वी नीड टू, हमें स्पेस अपने आप को देनी चाहिए कि हम अपनी फील करें। और अब आप ये देखो, यहाँ पर वो हेड में इन सारे इमोशंस को लेके बैठा हुआ है और उनको फील कर रहा है, उनको प्रोसेस कर रहा है। हमको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए टाइम देना चाहिए। हमको जल्दबाजी से अब काम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हम क्या क्या करते हैं, इमीडिएटली आंसर चाहने के लिए हो गए हैं। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, कॉफी इंस्टेंट चाहिए, मैसेज का जवाब इंस्टेंट चाहिए, लाइक्स इंस्टेंट चाहिए। नहीं, इमोशंस को इंस्टेंटली नहीं चाहिए। इमोशंस टाइम ले सकते हैं, जब वो प्रोसेस होंगे तब वो हमें बेटर जवाब मिलेगा। राइट। सो अब हमको क्या करना चाहिए? अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप अपने आप ये फील नहीं कर पा रहे हो, तो क्या चाहिए आपको? कोई चाहिए जो आपको ये समझा दे, राइट? क्योंकि हमें स्कूल में तो ये समझाया ही नहीं गया जब हम छोटे बच्चे थे। तो अगर हमें खुद से समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा इमोशनल एंकर कौन होना चाहिए? तो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, तो एक काउंसलर होनी चाहिए, तो एक थेरेपिस्ट होना चाहिए। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि हम पागल हैं या हमें कम समझ है। इसका मतलब है कि हम खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें अब किसी और के साथ जाके बैठना है। हमें अपने चीजों को उसको बताकर उस स्पेस में उसको फील करना है। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, हमें उस थेरेपिस्ट के पास जाके बैठना है, उस काउंसलर के पास जाके बैठना है, ताकि वो हमें अपने आंसर्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, बस उसका रास्ता दिखा दे, बता दे कि आपको यहां जाना है और ऐसे जाना है। और जब हम खुद से पहुंचेंगे, तब वो इमोशन हमें छोड़ेगा। कहते हैं ना, लेसन्स इन लाइफ आर रिपीटेड टिल यू लर्न देम। अगर इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो हमारी जिंदगी में वो सारे इंस्टेंसेस आते जाएंगे जब तक हम उनका रीजन कि वो क्यों आ रहे हैं समझना। ठीक है। सो अब आप देखो, एक थेरेपिस्ट बैठी हुई है, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, पूरा सब चीजों का एक गुच्छा सा बना हुआ है। थेरेपिस्ट क्या करेगी? हर एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डाल दे। अगर क्राइसिस है तो उसे क्राइसिस में पहुंचा देगी, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन में आपको थिंक करवा के सोच, आपको पूछेगी, क्वेश्चंस पूछेगी जो आपसे एआई बॉट नहीं पूछेगा। द राइट पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड आपके लिए, आपके अपने क्वेश्चन जो वो नहीं पूछेंगे, वो आपसे एक थेरेपिस्ट पूछेगी। और वो आपके साथ आपकी इमोशनल जर्नी में कॉन्स्टेंटली विटनेस की तौर पे मौजूद रहेगी। राइट। तो अगर एआई को देखो, एआई क्या करेगा? एआई आपके एंजाइटी को बोलेगा डेटा है, मतलब मैं उसके लिए तो डेटा हो जाएगा ना, है ना? बट हमारी एंजाइटी डेटा नहीं है, हमारी एंजाइटी रियल है। हमारी सैडनेस नॉइज नहीं है, हमारी सैडनेस एक इमोशन है। राइट। सो हमारा जो ये सारी चीजें हम फील कर रहे हैं, ये हमारे को कहीं सिग्नल दे रहे हैं कि इनको आप हाउस मत करो, इनको रिजॉल्व करो। ये सरफेस पे आ गए हैं, अब इनको अपनी बॉडी, अपने सबकॉन्शियस में से निकाल दो। जितना सबकॉन्शियस क्लीन होगा, उतना कॉन्शियस रियलिटी बेटर होगी। राइट। ये तो हम लोगों को मालूम है। वापस आप अगर उस फोटो पे चले जाइए जहां पर वो सारी लड़कियां परेशान थी, कोई बोल रहा था ओ नो, कोई बोल रहा था नॉट मी, तो वो ग्रेजुअली जब ये सारे इमोशंस क्लियर होते जाएंगे, तो वो जो आप फोटो पकड़ के खड़े हो ना स्माइलिंग, वो सारी गर्ल्स भी वैसे ही स्माइलिंग हो जाएंगी। तो कोई एक्ट नहीं होगा, आप फेक नहीं होंगे, आप जेन्युइन रियल बन जाओगे। ठीक है। वो ही हमारा लक्ष्य है इस सेशन से सीखने का। ठीक है। तो आप लोगों से मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करो एंड उसको हाउस मत करो अपनी बॉडी में। ओके। उसको बिल्ड मत होने दो, नहीं तो वो एंगर, सैडनेस एंड दूसरे डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड सो अगर आप देखो तो एआई जो है वो मिमिक करेगी।
प्रेजेंस मिमिक करेगी कि मैं हूं, बिकॉज मैंने क्या किया, यहाँ पे सेशन में आने से पहले लिखा एआई के लिए कि एआई मैं बहुत परेशान हूं, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने ये लिखा एआई को, तो एआई ने मुझे लिखा, हाँ मैं हूं, मैं आपके लिए मौजूद हूं, आप मुझे बताओ आपको क्या परेशानी है, मैं सुन रहा हूं। अब एआई ने मुझे बोला मैं सुन रहा हूं, मुझे कैसे पता, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। एआई ने तो ऑलरेडी वो आंसर्स बना के रखे हुए हैं। मगर अगर मैं किसी और के पास बैठी हूं तो मुझे मालूम है कि वो मुझे मेरे जितने भी अजम्पशंस हैं, जो पुरानी सोच है जो गड़बड़ हो सकती है, उसको क्वेश्चन करके ठीक कर सकती है। वो मेरी ईगो को संभाल सकती है। वो मेरे मास्क को मुझे धीरे धीरे हटाने में मेरी मदद कर सकती है। वो मेरे जजमेंट्स जो मैं अपने खुद के लिए बनाकर बैठी हुई हूँ, वो मुझे बोल सकती है कि नहीं, ये तो कोई जजमेंट ही नहीं है, ये तो कोई थॉट ही नहीं है। एंड फाइनली जब वो ये सब होगा मेरे साथ, तब आई विल बी रेडी फॉर अ फाइनल एंड अ रियल कनेक्शन विद ह्यूमन बींग्स। ओके, सो बिफोर वी फिनिश, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि इमोशंस हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें हमें फील करना चाहिए। हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। आप इमोशन को मानो एक बटरफ्लाई, वो आपके कंधे पे आके बैठी है और वो आपको तभी छोड़ेगी जब आप उसको प्यार करो। अगर आप उसको ऐसे 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 करके हटाओगे ना, जैसे मक्खी इधर उधर भिनकती रहती है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं हटेगा। उसे बैठने दो, 2 मिनट, 5 मिनट। वो जब आप उसे फील कर लोगे और उसे लगेगा कि वो, उसको हमने समझ लिया है, वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है? I am so happy that you have all been with me. Thank you very much. If any of you ever need any kind of individual counseling, और अगर यहाँ organizations के members आए हैं जिनको एक group session चाहिए, for self awareness of the employees, then you can always reach out to me. यहाँ पे मेरा नीचे number है. You can email me, you can WhatsApp me, and we can meet and we can discuss the possibilities. थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे 1 या 2 शब्दों में बता दो कि ये आपको सेशन कैसा लगा, कुछ फायदा हुआ आपको, कुछ नया सीखने को मिला। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो योर फीडबैक, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। So Nisha, thank you so much also for being till the end of the presentation. Seema, thank you. Very energetic class, wonderful. Yes, ma'am, thanks. Informative, Vikas is saying. Yes, ma'am. Thank you so much. It was a memorable class. Thank you, Manendra. Thank you for saying that. It was an important lesson in today's AI world. Thank you, Anjali. Poonam ma'am, we have some poll questions, so Okay. I'll just launch them. So Okay. let us see that who answers it nicely. Last sentence: to seek professional help without hesitation. Absolutely. Absolutely. Professional help. So Yeah. हाँ जी, बताएं. so Yes. everyone, the poll questions are there. Please start answering the poll questions. So the poll questions are for the audience, where you could just recollect your whatever you have learned from today's session. So the first question is, when you are overwhelmed, who do you turn to first? What's your screen time on wellness apps versus actual wellness activities? If your emotions were an AI playlist, what would it be called? They are just simple 3 questions, and I think so you can self reflect with the answers.
डोंट हेजिटेट, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करो. इट विल गिव अस सेल्फ रिफ्लेक्शन टू यू एज वेल कि क्या होता है. गुड. मैनी पीपल हैव आंसर्ड. जिन्होंने नहीं दिया है आंसर, आप लोग भी कर सकते हैं. गो ऑन. जब भी आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं, किसके पास सबसे पहले जाते हैं? अपने फोन के नोट्स ऐप के पास, फ्रेंड के पास, थेरेपिस्ट के पास, पेरेंट्स या चिल्ड्रन के पास? किसके पास जाते हैं, या किसी के पास भी नहीं जाते? दूसरा क्वेश्चन है कि आपका वेलनेस एप्स पर आपका स्क्रीन टाइम कितना है वर्सेस एक्चुअल वेलनेस एक्टिविटीज में. किस पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं? आप वेलनेस एप्स पर जाते हैं या वेलनेस एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, अगर इफ योर इमोशंस वर एन एआई प्लेलिस्ट, अगर आपके इमोशंस आपकी एआई प्लेलिस्ट में होते तो उसको आप क्या नाम देते? लास्ट 1 minute. I think so we can end the poll. We are just ending the poll now. Mika ma'am, we should also ask if they have questions. Yes. Now the floor is open. I think so many people have answered. That's good. I hope you were able to self-reflect. Now the floor is open. If anybody wants to ask the question, please, you are free to ask. आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. Nobody wants to ask any questions? Ma'am, excuse me. हाँ जी. My name is Kuldeep Saxena. Hi, Kuldeep. I'm from Seva Bharati. It's a really wonderful session we just witnessed, and it is a very mandatory and essential for all of us. Thank you so much. Thank you for sharing this such kind of information. I have a question and doubt. हाँ जी. Attitude reflects on the emotion also. Right. Attitude reflects on the emotion also. So if emotion will be cured or managed, then how can the attitude will be reflect, and how can be attitude to be changed and balance the emotion? Very nice question. तो कुलदीप जी, आप इमेजिन करिए कि एक एटीट्यूड अगर एक पर्सन का स्टर्न है, स्ट्रॉन्ग है, ओके, एंड वो एटीट्यूड है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस पर्सन को
हेल्प मिलनी भी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज उसका थॉट क्या है, स्टबर्न थॉट है. सो लाइक आई शेयर्ड कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो सबसे पहले हमारे एटीट्यूड और बिलीफ बनाते हैं, और एटीट्यूड और बिलीफ बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं. सो अगर उसका थॉट ये है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ और मैं अपने आप सब मैनेज कर लूंगा और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो उसका एटीट्यूड ही ऐसा दिखेगा वेयर ही विल नॉट बी वेरी ओपन टू रिसीविंग हेल्प. तो उस पर्सन के लिए कुछ भी सजेस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लव्ड वंस को. उसके एटीट्यूड में आपको क्लोज्डनेस दिखाई देगी, उसके एटीट्यूड में ओपननेस टू न्यूअर कॉन्सेप्ट्स, ओपननेस टू एग्री टू डिसएग्री दिखाई नहीं देगा. और जो उसका बिहेवियर होगा वो भी ऐसा होगा कि आई नो इट ऑल, मुझे मालूम है क्या सही है क्या गलत है. वो कभी भी ग्रो करने के लिए उसका एटीट्यूड उसको तैयार नहीं करेगा. बिकॉज इसमें इफ यू नो देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल सेइंग व्हिच सेज, इफ यू गेट इरिटेटेड एट एवरी रब, हाउ विल यू एवर शाइन, राइट? सो एक एटीट्यूड है जो हमारी ग्रोथ डिटर्मिन करता है, कि अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, लर्नर हैं, स्टबर्न नहीं हैं, open है, then we can actually take the wisdom of either distilled literature from old people. Sorry, मैं वापस इंग्लिश में आ गई. और अगर हम क्लोज्ड हैं तो हम कैसे अपने ग्रोथ को खुद से और खुद की नॉलेज से कितने दूर तक ले जा पाएंगे? कहीं तो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा ना. So I hope I've been able to give you with an example that attitude in life is so important, because attitude is also directly proportional to our intention. अगर हमारा इंटेंशन है ग्रोथ का तो हमारा एटीट्यूड भी होगा कि हाँ मेरे लिए एक टीचर अपीयर हो जाए, मैं सीखूं. मगर अगर हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है कि नहीं मैं सब जानता हूँ, तो वो पर्सन फिर मोस्टली आइसोलेटेड रहेगा, वो औरों से ज्यादा बात नहीं करेगा, वो ज्यादा उस जोन में रहेगा कि मैं ही प्रीच करूं. Right? Kuldeep ji, I hope I've been able to explain it to you. एब्सोल्युटली, धन्यवाद. Thank you. वही मैं यही बता रहा था कि जब एटीट्यूड ही अगर वो मैनेज करना नहीं सीखेगा तो इमोशन सिंड्रोम को भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा. दैट्स वी वांटेड टू नो दैट. थैंक यू, धन्यवाद. Anybody else? Megha ma'am, I think all of them have got a lot of food for thought. I'm just going to say thank you for really letting me express my insights and touching your lives. I'm so happy. मुझे बहुत अच्छा लगता है यंग बच्चों के साथ में बैठना, उनसे बातें करना, उनकी उनकी चीज़ों को सुनना समझना. अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगता है कि आपको रीच आउट करना है मुझे, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा नंबर, अदरवाइज आप मेघा मैम को रीच कर सकते हैं एंड वो मुझे बता देंगे. Thank you, Megha ma'am, for inviting me. Thank you, HSSC. And Thank you, Poonam ji. Thank you so much for such an insightful webinar. I personally also very enjoyed the webinar, and sometimes you were saying that you have to keep the notes, and I was also taking the notes. Yes, this is a good one. I should also know about the same. Thank you very much. That was really insightful, and I hope our students, trainers, our training partners were able to gain some insights and were able to apply the same. Yes, you would get the recording of the same that would be channelized on our YouTube channel, on HSSC's YouTube channel, as well as it would be posted on our Facebook and other social media platforms. Also would be available in times to come on our LMS platform for all of you to watch. I just request to Megha ji. Ji. Megha ji, this is Kuldeep Saxena. Ji. This kind of sessions are very essential and very good for the people related with the skilling, because skilling is need the emotional balance and the other skills. So ऐसे आप कराते रहिए, अच्छा रहेगा. Because the skilling people जो आते हैं वो different background से आते हैं ना, तो ऐसा सेशन बहुत अच्छा रहेगा. आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर एंडेवरेंस और आप सबका HSCC के लिए
or particularly the Poonam madam has really enlightened the good things. So please appreciate, and I'm appreciating, and that please continue such kind of sessions and invite all the skill partners. थैंक यू सो मच कुलदीप जी, यही कोशिश है कि सब लोग ज्वाइन करें. अगर यहाँ इन पर्सन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में हमारे सेशंस को हमारे एलएमएस पर, हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकें. दैट्स द ओनली यही कोशिश है हमारी, और इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू पूनम जी. थैंक यू. मेघा मैम, एक क्वेश्चन है जस्ट टू आंसर. जिसने रजिस्टर किया, आई थिंक यू हैव सबके ईमेल आईडीज, है ना? So maybe will you be able to email the recording link to every participant? So if they want, they can send it for their family members who would be needing such insights. That's a good input. We would see that हम क्या कर पाएंगे इसके लिए. Thank you so much. Okay, thank you Thank everybody. you. Have a lovely day. Thank you so much. Thank you. Thank you.